اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا ناصر اپنے ایک نئے بلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، تو پلیز سلام قبول فرمائیے۔ جناب علی، پاکستان میں چیزیں اتنی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ ہمیں اس مخصوص نیوز کو چننا مشکل ہو جاتا ہے جو کہ آپ کے گوش گزار کرنی ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ تو جناب سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو سب کو کہ چیف جسٹس صاحب نے آخر ایک انصاف کو مرتے مرتے انہوں نے بچا لیا، بلکہ 16 مہینے جو انصاف قبر میں پڑا رہا، انہوں نے ایک دفعہ پھر اس کو زندہ کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ ہر انسان کو، بے شک وہ دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے عہدے کے اوپر ہو، اس کو اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور جس طرح ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، اسی طرح ایک دن نوکری چھوڑ کے بھی جانا ہی ہوتا ہے، بے شک وہ ریٹائر ہونا ہو یا ریزائن کرنا ہو۔ جناب اب بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب تو جو صدار گئے وہ تو خیر بات کہہ گئے عدالت عالیہ کو، لیکن جن کو اس وقت جن کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہے اس میں سب پی ڈی ایم والے شامل ہیں، بلکہ وہ ایک مونچھوں والا، اس نے تو کل پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ عمران خان کو مبارک ہو کہ اب اس کو 3 مہینے اور جیل میں رہنا پڑے گا۔ تو عمران خان تو پہلے ہی جیل میں ہے، اس کو آپ اس سے آگے جیل میں کیا رکھ سکتے ہیں؟ بلکہ اس نے آپ کے ظلم و ستم ایسے دیکھے ہیں کہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ اس کے اوپر ہمیشہ شرمندہ رہے گی کہ جب لوگوں کے گھروں کے اوپر ریڈ کیا گیا، ان کی ماں کے ساتھ، ان کی بہنوں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ وہ بدسلوکی کی گئی کہ وہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اب تاریخ کا پہیہ یقیناً چیف جسٹس صاحب نے الٹا گھمانے کی کوشش کی ہے، لیکن کاش وہ اس رات کو لنگی باندھ کے تشریف نہ لے کے آتے کہ جب رات کو ان کو 12 بجے عدالت لگانی پڑ گئی تھی، تو جناب آج یہ ان کو دن دیکھنا نہیں پڑتا، بلکہ ان کا نام بھی شاید تاریخ میں بہت سنہرے لفظوں کے ساتھ لکھا جاتا کہ جب اس سے پہلے ایک چیف جسٹس نے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف جو بہت بڑی جنگ چھیڑ دی تھی، اور رزلٹ اس کا یہ نکلا تھا کہ اس ڈکٹیٹر کو بھی اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے، لیکن چیف جسٹس کو پھر ریسٹور کرنا پڑا تھا۔ بہرحال یہ کرج، یہ حوصلہ، یہ ہمت کی بات ہر ایک میں نہیں ہوتی، یہ ہر انسان کا پروفائل دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو پہلے چیف جسٹس نے کیا تھا وہ ابھی یہ چیف جسٹس بھی کرتے ہیں، یا جو جسٹس منیر کر چکے ہیں، یعنی نظریہ ضرورت کے تحت، تو وہ ان میں ان کی روح، خدا اللہ پاک نے بچایا کہ ان میں ان کی روح محلول نہیں ہوئی، ورنہ اگر ان میں ان کی روح حلول کر جاتی تو شاید اس ملک میں اس وقت ہم میرے عزیز وطنوں کا ترانہ سن رہے ہوتے۔ جناب علی، آپ کے علم میں ہے کہ انصاف اس وقت سے سولی کے اوپر لٹکا ہوا تھا جب اس رات کے اوپر جب یہ سب لوگوں نے آ کے عدالت لگائی اور خان صاحب کی ایک چلتی پھرتی گورنمنٹ کو انہوں نے ایسے اٹھا کے پھینک دیا کہ جیسے ان کی کبھی گورنمنٹ تھی نہیں، بلکہ اس رات ان لوگوں نے انصاف کا قتل عام کیا، اور اس میں بے وجہ سب شریک تھے، بے شک وہ عالمی سامراج کے گنڈے ہوں، وہ وہاں سے مانیٹر کر رہے تھے، اور یہاں والے گنڈے جو ہیں وہ یہاں پہ اپنی جو کاوشیں ہیں ان کو انجام دے رہے تھے۔ ہمارے دشمن، ان کو یقیناً اب ہماری دشمنی کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ ہم اپنے دشمن خود ہی بن چکے ہیں، بے شک وہ گوادر کا مسئلہ ہو، بے شک وہ ہمارے بارڈر کی سمگلنگ ہو، یا پھر ہمارے ملک میں انصاف کا قتل عام ہو۔ اب سنا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس انصاف کو تو اپنی طرف سے سر انجام دے کے جا چکے ہیں، لیکن
अब जो आने वाले इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस जनाब फायज ईसा साहब हैं, उनकी अदालत आलिया भी इसी इंसाफ का जो उसके ऊपर अदालत लगाएगी, और देखते हैं अब वो उनका इसका क्या फैसला करते हैं। हुजूर, इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, शायद ये तारीख का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि ये मुल्क इस वक्त अपने टर्मोइल से गुजर रहा है। इस मुल्क में इंसाफ को इतना मुश्किल, इतना तकलीफ दे बना दिया गया है कि इंसाफ लेना अब हर बंदे के बस की बात नहीं है। वो रो तो सकता है, वो करला तो सकता है, वो चीखें तो मार सकता है, लेकिन जब वो अदालत आलिया में जाता है तो उसको ये नवीज़ सुनाई जाती है कि आपको सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और ख़ुद ये लोग चमचमाती हुई गाड़ियों में बैठ के मज़े से अल्लाह तल्ले करते हुए कभी फ़ॉरेन को सुधार जाते हैं, बाहर के मुल्कों में जाके दरिया टीम्स के किनारे के ऊपर बैठ के लंदन में तो इंजॉय करते हैं कॉफ़ी को, और फिर हमें पाकिस्तान के मतलब बातें बताते हैं कि जनाब अगर मैं ये करता तो वो करता, और फिर हमारे झूठी सच्ची किताबें लिख के बताते हैं कि मेरे ऊपर उस वक़्त किसका दबाव था और किसका दबाव नहीं था। व्लॉग करने का मतलब सिर्फ एक होता है कि आप लोगों के जो गोशगुजार वो हकीकत हाल बयान की जाए जो बाकी लोगों ने सब ने छुपा रखी है। अभी मैंने जब ग्वादर का थोड़ा सा जिक्र किया तो आपको पता होगा कि ग्वादर में अभी जनाब वासराय USA जनाब सफ़ीर साहब ने अभी ग्वादर का दौरा फरमाया है। उसको कुछ हल्के पॉजिटिव ले रहे हैं तो कुछ हल्के उसको नेगेटिव ले रहे हैं, लेकिन बहरहाल ग्वादर एक पोर्ट का नाम है। मेरे अपने व्यू के मुताबिक वो सबके लिए खुली होनी चाहिए। वो दुनिया के 144 कंट्रीज़ को कनेक्ट कर सकती है, उसमें ये कैपेसिटी है। तो अमेरिका हो या यूरोप हो तो या हमारा भाई चाइना हो, हमें ये चाहिए कि हम उस ग्वादर में सब इन्वेस्टमेंट करें और उसको दूसरा हांगकांग या दूसरा सिंगापुर या दूसरा दुबई बनाने में सब अपनी कोशिशें करें और उसके ऊपर काम करें। हमारी किसी से, किसी मुल्क से, किसी कौम से कोई दुश्मनी नहीं है। हम बकौल खान साहब के हम हर एक से वही तल्लुकात चाहते हैं कि जो तल्लुकात वो हमसे रखना चाहते हैं। हम वही इज्जत चाहते हैं कि जो वो अपनी कौमों को इज्जत देना चाहते हैं। तो जनाब इस वजह से हम, लेकिन इसके लिए सिर्फ एक फार्मूला है। अगर हमारे मुल्क की अदालतें इंसाफ करेंगी तो यकीनन यहाँ पे किसी को, किसी ताले आज़मा को जरूरत नहीं होगी कि वो यहाँ पे शब खून मार सके और लोगों को पाबंद सलासल कर सके और फिर मिसल कर सके, फिर उनके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ सके। लेकिन जब तक हमारे मुल्क की अदालतें कमज़ोर रहेंगी तो ये जुल्म, ये नाइंसाफ़ी होती रहेगी। और बेशक बड़े लोग अपने आप केस भी माफ़ करवा लेंगे, बेशक वो इस मुल्क से भाग भी जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने एक दिन रखा हुआ है, उसका नाम जजमेंट डे यानी क़यामत का रोज़ है। उस वक़्त ये लोग कभी बच नहीं सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे वो ताकतवर हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन इन्हीं गरीबों का, इन्हीं मजलूमों का जो आज आटे के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा के बैठे हुए हैं, जो आज चीनी के लिए तरस रहे हैं, जो आज रोटी के लिए जिनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, जनाब एक दिन आएगा इन्हीं गरीबों का हाथ होगा और उन जालिमों का गिरबान होगा। इसी इंसाफ को इससे पहले जस्टिस मुनीर ने जिंदा गाड़ दिया था, उसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। अगर वो ये गलती ना करते तो आज पाकिस्तान की तारीख मुख्तलिफ होती। अभी आप पड़ोसी मुल्क को देख लें, उसमें आप देखें 10 सालों में कितने वज़ीर आज़म आए हैं और हमारे मुल्क में कितने वज़ीर आज़म हैं। अगर उनके मुल्क में 10 सालों में 2 वज़ीर आज़म आए हैं तो हमारे मुल्क में 13 वज़ीर आज़म आ चुके हैं। जनाब कितनी तकलीफ दे की बात है कि वो लोग हमसे दूसरे मज़हब के हैं, हम लोग अपने आप को आला मज़हब के पैरोकार जानते हैं और हम समझते हैं कि इस्लाम दुनिया का सबसे आला मज़हब है। लेकिन ज़रा अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखिए कि हम इस्लाम के ऊपर कितना चलते हैं और इस्लाम की बातों को कितना मानते हैं।
अभी वकला तहरीक शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि वो लोग इंसाफ के लिए लड़ेंगे और सड़कों के ऊपर बेशक वो अपने इंसाफ के लिए आगे आएंगे। और वो पाकिस्तान का वो तबका है कि जिसको सबसे ज़्यादा फिक्र है कि इस मुल्क में अदल के साथ क्या हो रहा है, अदलिया के साथ क्या हो रहा है और इंसाफ के साथ क्या हो रहा है। जनाब, आप लोगों के गोशगुजार जो चंद बातें करनी होती हैं वो इतनी गहरी होती हैं कि हमें बड़ा नपतला जवाब देना पड़ता है, बड़ा सोच समझ के अल्फाज बोलने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी हर बात को मॉनिटर कर रहे हैं। वो कब किसके घर में कूद जाएं ये कोई नहीं जानता। लेकिन यकीन रखें इस बात का, कायदे आज़म ने ये पाकिस्तान इसके लिए बिल्कुल नहीं बनाया था। कायदे आज़म ने ये पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि हम सबको बराबरी के हुकूक हासिल हों, बेशक वो किसी भी मजहब से तलक रखता हो या वो किसी भी तबके से तलक रखता हो। लेकिन ये और बात है कि हमें ये पाकिस्तान कौन सा दिया जा रहा है कि जिसमें अगर कोई सरहद में बैठा KPK में बैठा है तो वो उधर परेशान है, अगर कोई पंजाब में बैठा है तो वो इधर वो अपने आप को महफूज महसूस नहीं कर रहा, और अगर कोई सिंध में बैठा है तो वो उधर जगीरदारों के चंगल में फंसा हुआ है। जनाब, बलोचिस्तान की मैं बात नहीं करता, वहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो सब आपके सामने है। गिलगित बल्तिस्तान वाले क्या नारे लगा रहे हैं, क्या उनको ये नारे लगाने चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो यहाँ पे हो रहा है वो अब किसी से ढका छुपा नहीं है। हम एक MBS को रोते हैं कि वो हमारे मुल्क में तशरीफ लेके नहीं आए। उनको इस मुल्क में आने की क्या जरूरत है जब उनके गुमाश्ते यहाँ पे मौजूद हैं? उन्होंने तब आना है यहाँ पे जब उन्होंने देखना है कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले जो असल लीडर हैं वो मौजूद हों, ना कि वो लीडर हो कि जो 144 मुल्कों के दौरे तो कर चुका है लेकिन पाकिस्तान को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी मिसाल जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ जनाब बिलावल साहब की। उन्होंने 144 कंट्रीज़ के दौरे किए लेकिन पाकिस्तान को उसका रत्ती भर भी फ़ायदा नहीं हुआ। नाज़रीन इकराम, ये दुनिया देख रही है पाकिस्तान की तरफ, वो देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है और हम पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने ये न्यूज़ यकीनन देखी होगी कि जनाब चाइना ने अभी जब देखा कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते तो उन्होंने अब अपना सफारतखाना जो वो अफगानिस्तान में खोल लिया है और अब वो सिचुएशन को वहाँ से मॉनिटर करेंगे। हमें ये फैसला करना होगा कि हमें किसके साथ चलना है, बल्कि किसी के साथ क्या चलना है। पहले हमें ये फैसला करना होगा कि हमें अपने पाकिस्तान के साथ कितना मुखलस रहना है और कैसे इसको आगे लेके जाना है। अगर हम इस मुल्क के साथ मुखलस नहीं होंगे तो यकीन करें कोई मुल्क इस मुल्क में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। खा वो अमेरिका हो या वो अरब ममालिक हो, वो तेल और तेल की धार देख रहे हैं, वो वक्त देख रहे हैं। बल्कि अब तो ये डर पड़ गया है, ये खौफ आ गया है कि शायद हमारे दुश्मन जो है उन्होंने हमारे ही दोस्तों को अपनी तरफ माइल कर लिया है और इस वजह से जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे दोस्त ममालिक थे, वो हमारी आवाज़ में अब आवाज़ मलाना भी अभी पसंद नहीं कर रहे। क्यों? ऐसा तो पाकिस्तान कभी नहीं था, ऐसा तो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ था। क्या हुआ है ऐसा? यकीनन इसका सवाल आप भी सोचें, इस सवाल का जवाब आप सोचें, इस सवाल का जवाब मैं भी सोचता हूँ। आप मेरे कमेंट्स में लिखें, मैं भी इसको ढूंढूंगा। जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि इसमें किसी बाहर के मुल्क की कोई गलती नहीं है। इसमें जो भी गलती है इस सरजमीन के ऊपर बसने वाले ताराजमाओं और बदनीयत बदकिरदार उन लोगों की है जिन्होंने इस मुल्क को ये समझ रखा है कि ये चिरागा है, यहाँ पे आएंगे, खाएंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट करेंगे और फिर यहाँ से भाग के उन्हीं मुल्कों में चले जाएंगे जिन मुल्कों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है। बहरहाल ये लूहा जारी है। अब आप लोगों को इसी के ऊपर इख्तियार करना पड़ेगा। मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया, जिस बहन ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके दिल की वो आवाज़ बनूं
جو میں اپنے دل سے بتاتا ہوں. تو جناب مجھے سپورٹ کریں. آپ کا بہت شکریہ. ابھی ٹائم بہت ہو گیا. ورما ایلن بلا. انٹر نیکسٹ ٹائم کے لیے السلام علیکم.